legislate regarding the rules. And all the parliament do is subsequent legislation नहीं हो सकती. ये जो existing law था उसके दायरे कार में रहते हुए और कानून आप rules नहीं बना सकते. दायरे कार में रहते हुए power in any event vests in the Supreme Court. Supreme Court exclusively, sir, because the word used is not just rule making; it is regulate. That we can by rule regulate the practice. Now I'll read the provision. Yes, my lord. Let's reframe the whole provision. My lord. It says, now let's read it like this. My lord. The Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. Yes, my lord. So are you saying that Supreme Court had to be advised about the Constitution, had to be advised about the law, because it would make rules which will be completely in violation of the Constitution and the law? So it would have been much simpler drafting to start it with the Supreme Court. Rules regulating practice and procedure of the court. Your contention is that a high body, as a constitutional body, as the Supreme Court, had to be reminded that there is a constitution in existence. Don't violate it. That's a very strange proposition. You are saying can equally be said by using these words. My lord, with the utmost respect, my lord. जवाब दे नहीं. Let's hear the counsel. जी, please सुन लेते हैं counsel को. I'm also reading it the same way. The Supreme Court may make rules and regulating the practice and procedure of the court, my lord, subject to the Constitution and the law. My lord, which means Supreme Court can make rules, yes, whatever rule it wants to make. जी. But it can't go beyond the Constitution or any law which already exists. So there is वो मेरा सवाल अपनी जगह ठहरा. हुजूर आप जवाब तो दे जी. My lord, with utmost respect, I'm not reading it utmost respect को छोड़िए, सिर्फ जवाब दे दीजिए. अच्छा सर, आपके साथ मेरा वक्त की कमी है. जी, I know, my lord. I'm just saying that subject to law. Subject means some kind of restriction. मैं और मैंने आपसे फिर से आप देखें, मैंने सवाल है उसका तो आप जवाब मैं आ तो जाऊँ नहीं. आप आएंगे तो अगर दिन निकल जाए. मैंने कहा अगर ये हम लफ्ज काट दें सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, फर्क क्या पड़ेगा फिर? जी, ये इसका सवाल का जवाब दे दीजिए. फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पॉइंट इज दैट नहीं पड़ेगा ना. नहीं, लेकिन थैंक यू. इशू चलिए नेक्स्ट पॉइंट. नहीं सर, पहले अभी सुन तो ले, मैं कंप्लीट तो कर लूं सर आपकी इजाजत से. अगर फिर भी कोई लॉ आप रूल नहीं बना सकेंगे which violates any provision of the Constitution. Is this something to be taught to the Supreme Court? No sir, but I'm humbly submitting subject to law does not mean the Parliament can legislate. Humble submission. Subject to, क्योंकि जहाँ Parliament, जहाँ Constitution power देता है Parliament को बना दिया, specific words are used. नहीं खैर, जी. अब पता नहीं आप redundancy है. I'm not assuming it is. I'm just 1, 2, saying. 3, 4, 5, 6 words of the Constitution we can delete as rendered meaningless. So I'm reading it like that if I accept your contention. Subject to only means, by humble submission, is that subject to only means that there is some kind of a restricting, because the constitutional power, which is a continuing power, is being given to the Supreme Court. Next point. The point is that the words used in the if Parliament, if Constitution is giving power to the to make any law, it specifically used certain words in the Constitution. If my lord kindly sees 154(5), Article 154(5). Next page. My lord, until Majlis Shura Parliament makes provision by law in this behalf, the Council may make its rules of procedure. These are the words. Then Article 6.3, my lord, if my lord kindly sees Article 6.3. Article 6.3 or 63? 6.3. Article 6, subclause 3. Majlis shall by law. Article 6, my lord. जी पढ़ लिया जी. Majlis shall by law provide punishment of persons found guilty of high treason. Then my lord will kindly see 151(2), freedom of trade. And my lord also reads 150, subject to clause 2, trade, commerce, intercourse throughout Pakistan shall be. Majlis Shura may by law impose such restrictions. May by law.
Again, sir. Then, my lord, What is the point you're making? I'm making- You're just citing provisions. my lord, if the word in the 191 was the parliament can make law, these kind of expressions as provided in the constitution would have been used, my lord. My humble submission is that when the constitution is giving the legislature a power to enact a law, then specifically words are used in the part. Mr. Zubairi, there's another question. My lord. Once the rule-making power has been exercised My lord. by the Supreme Court in terms of the Constitution, because the power vests in the Supreme Court, can subsequent legislation displace, as this act purports to do so, can subsequent legislation displace the rules that have lawfully been and constitutionally been framed by the Supreme Court? That's my humble submission. They cannot, for the simple reason, because then it will become ad nauseum. For example, can now the Supreme Court, which excise can make law regulating its practice procedure, make a law overriding the Parliament's making of the law? Then the Parliament will do it. Then where will we stop? So my humble submission is that could not have been the intention of the framers of the Constitution, that to give power to Parliament, because there are separation of power. Once the Honorable Supreme Court has made the rules regarding regulating the practice procedure, the Parliament does not. But that practice and procedure, the rules, cannot be in violation of any constitutional provision, any law which existed, sir. So the core Substantive law. question is, where does the Constitution confer, in which institution confer the power to make rules? Ji. Whether it is the Parliament or is it the Supreme Court? Ji. If it is the Supreme Court, the only restriction is that the Supreme Court can do so within the framework of the Constitution and the existing law. My lord. And that's it. Yes, the my lord. Parliament cannot, because the power does not vest in the Constitution in the Parliament in terms of Article 199. 191, my lord. Ji, 191. My lord, Next point. Next point. My submission on this score is Next that point, that's the reason I was saying. I would really want to hear you, Mr. Zubairi. Sir, my lord is asking a question. नहीं वो आप बात तो करें फिर सवाल उठेगा यकीनन। पूछ रहे हो, इसी बात से सवाल उठाए, sir. जी. Now, if I may ask you, these words subject to the Constitution, if these words were not there at all, and the Supreme Court were to make rules, and someone were to point out, well, sir, this proposed rule X is contrary to the Constitution, the answer would presumably be, the Supreme Court would say, well, okay, yes, you're right, so we can't make rule X, right? So in that sense, saying subject to the Constitution is always redundant. Yes. Because it's always going to be there. There. Seems to me, but this is the question, that perhaps there's a more subtle. The Constitution, of course, can also be amended. Yes? Yes, ma'am. Under article. But by and large, the Constitution is regarded at any given time to be fixed, right? This is it. Underneath it, whatever happens by the judiciary, by the executive, by the legislature. So maybe the point in saying subject to the Constitution is not to make the obvious point that everything is always subject to the Constitution. Everyone knows that. Rather to fix the position of law, that when the rules are being made, what you just said, Yeah, Lord. when the rules are being made by saying subject to the Constitution and the law can only be as at that time. At that time, sir, when the rules are Maybe framed. this is the point that is being made here, because Yes. otherwise I was thinking about this, and I've been thinking about this since the case started. Why subject to the Constitution? Was everything is always subject to the Constitution? Ji. Mr. Maybe Zubairi, that's a I more just want to subtle say one thing. The day we hear this case, the weeks we hear this case, our institution exceeds our disposal. The day we don't, our disposal exceeds our execution. If you think this is a never-ending hearing, this is the last day of the hearing. My lord. Please remember that. You can argue till 11:30, and each one of us may have their views. Let them be expressed in judgments. I want to hear counsel. Sir, when a I mean, question, if you, My lord, please continue. We will restrain ourselves. You just continue your argument so we can be enlightened
what you want to tell us, and we can record it, and we can either agree with you or disagree with you in our judgments. So, my lord, Please, next point. Please go on to the next. Please go on to the next point. So my point is that, again, my lord, that when the law is being given to the parliament, the specific words, so hence subject to law, and for that I want to take you, my lord, I have placed certain case law before lordship, if my lord has that. दे दिए या देंगे? ये रखे हुए सर। पहले से नहीं दिए? सर दिए हैं, बहुत पहले से दिए हुए रखे हुए हैं। आज? नहीं सर, मतलब उन्होंने कहा जब आप आर्ग्यू करेंगे उस वक्त दीजिएगा, मैं तो कब हर रोज लेके आ रहा हूँ सर। Sorry, this is most unfair. हमने कहा था लोगों को फाइल कर दें। तो ये केस हम हाँ ठीक है, you are right, we are wrong. नहीं सर, we have told everybody to file. हाँ भी कागज के टुकड़े आ रहे हैं बीच में से, और ये कोई आसान चीज है पढ़ना? इस लॉ है सर, इसमें तो पहले नहीं कर सकते थे फाइल? इन दुनिया में ऐसे होता है या सिर्फ निजाम अदल में ऐसा चलेगा? बाकी दुनिया की हम तारीख में बताते हैं। ये जरा प्लीज ठहर जाइए ना कि अमेरिका में क्या होता है, विलायत में होता है। आप ये करें अमेरिका विलायत में जाकर के, फिर क्या होगा आपके साथ? वहां तो आप सारे वेस्टर्न ट्रेडिशंस बताते हैं, इस्लामिक ट्रेडिशंस तो बताते नहीं है। अगर कागज के मामले में ठीक है भाई, मेरी मर्जी जब मैं करूं। सच ए सीनियर काउंसिल। माय लॉर्ड, मे आई टेक पेज 144 ऑफ दिस इज अ केस। क्या आप हमें प्रोपोजिशन बताएं? पहले प्रोपोजिशन बताया जाता है। How a subject to law has to be interpreted. That is my. ठीक है, बता दें केस का नंबर। Case is page 144 of this booklet, sir. जी। Winberry versus Salisbury. It's a case from the American jurisdiction, and they have interpreted this word. What is the meaning of? And their constitution also provided this thing. Their constitution also permits of documents in courts. चलिए खैर 144. Sir, this is just a case law. सुप्रीम कोर्ट का है, ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं सर, it is Supreme Court of New Jersey, sir. अच्छा ठीक है जी। My lord, page 145. If my lord kindly sees the sixth line from the top. देखिए वो जरा मुनासिब नहीं लगता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फुल बेंच में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ न्यू जर्सी का जरा ठहर तो जाइए ना। हमें हमारा लेवल इतना लो तो ना कर दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका तो बताए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ न्यू जर्सी को हम फॉलो करेंगे। सर मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि हाँ बता दें, ज़बानी बता दें। मैं आपकी बात में ज्यादा वजन है बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ न्यू जर्सी में। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का लफ्ज नहीं है, लेकिन उनके जो स्टेट्स हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के लफ्ज हैं। Kindly see, the Supreme Court shall make rules governing the administration of all courts, state, and subject to law the practice and procedure of all such courts. This is the law which they interpreted. And my lord, it says, para 2 on page 145. The phrase subject to law. The phrase subject to law is not only ambiguous but elliptical. No what is elliptical mean? Sir, matlab it is confusing. जी. You reading a word? You tell us the meaning of the word. Continuous, sir. Continuous. No word in the law has more varied meaning than the term law itself. Nor is the phrase subject to crystal clear, for the phrase implies a limitation rather than a grant of power. सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की बराह रास्त समाअत का सिलसिला जारी है, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। पहली बार विटामिन सी और ग्लिसरीन के साथ नया लक्स, जो दिल को निखारे, नमी दे और दे चांद सा रोशन चेहरा। लक्स फेस ऑफ द ईयर माया अली। थैंक यू लक्स, पर ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, ये है इन सभी खूबसूरत चेहरों का जिनकी रोशनी से दुनिया रोशन है। नया लक्स, दे चांद सा रोशन चेहरा। बाबा की दुलारी, 10 माँ की रानी हमारी, नस्ल सेरेलैक के रेड और येलो फ्रूट से चबाना सीखेगी अब मेरी प्यारी। 10 माह के लिए नेस्ले सेरेलैक मल्टीग्रेन with red and yellow fruits. From Nestle. The wait is finally over as I welcome you all to the Lucky shirt? लगी जाए? Unlucky Sherry? और लेज? Quiero conmigo que haya nada negativo, mira vengo positivo y tengo ganas de. Quiero conmigo que nada negativo, yo no tengo positivo y tengo ganas de jalar. Paso de la cama, paso de la cama, paso de la cama.
मिल गई लीज। अब मैच का मजा आएगा। पाकिस्तान has won the toss and they've elected to bat. गेम स्टार्ट होने वाली है। गेम तो अब स्टार्ट होगी। माउंटेन ड्यू, यार हैं तो पार हैं। एक कप और है कितनों का बहाना, एक कप और तुम है एक और कप चाय। मैं एक और कप चाय, टपाल दानेदार। ब्लू था तूफान जगा। गाड़ी से शर्र कीचड़ उछला, शुक्र है मैं बच गई। फेंक दो कुर्ता भाभी, ये दाग नहीं धुलना। अम्मी करूं धुलाई? क्या? मेरा बोनस ट्राई स्टार बनाए झाग ज्यादा और करे दागों की ऐसी दमदार धुलाई जो इस कीमत में पहले कभी ना आई। वाह क्या बात है बोनस की। ये कहते हैं किफायत शुआरी करो। पता है असल किफायत शुआरी किसे कहते हैं? जब थोड़ी सी समझदारी से कोई बड़ा फायदा हो, जैसे नेस्ले बुनियाद आयरन प्लस, जिसका 1 लीटर बने सिर्फ 200 रुपए में, ताकि इसकी सेहत पर कोई समझौता ना हो और ये स्कूल में किसी से पीछे ना रहे। नेस्ले बुनियाद आयरन प्लस, बेहतर जिंदगी की और भी मजबूत बुनियाद। नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ। मैकडॉनल्ड्स दे रहा है इतना कुछ सिर्फ 26.95 में। मैकडॉनल्ड्स जंबो शेयर बैग। तो अभी ये मुंह क्यों रुकेगा? Zong 4G की monthly social and YouTube ऑफर लगाएं और पाएं 20 GB डेटा, 500 Zong मिनट्स और SMS और 100 दूसरे नेटवर्क मिनट्स सिर्फ 350 रुपए के लोड पर। अभी *6001# मिला। चाबी किसके पास है? गेम स्टार्ट होने वाली है। बस यहीं तक चढ़ने का प्लान था। चढ़ने का नहीं, उड़ने का प्लान। अब भाई की एंट्री चेक करो। माउंटेन ड्यू, यार हैं तो पार हैं। चाय चाहिए। उफ, ये देखो, याद है क्या गाया करता था? गाया करते थे। जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। अब दिल से दिल मिला हो और थोड़ा सा मुस्कुराओ। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ एवरीडे। मजा आ गया। आवाज में जादू ही ऐसा है। पर मैं तो चाय की बात कर रही थी। Sufi Classic Beauty Soap. Really classic. डॉन न्यूज आवरली क्लॉक के लिए ताउन किया है। हो गई धुलाई? दमदार धुलाई। वाह क्या बात है बोनस की। अब डालडा कनोला और सनफ्लावर कुकिंग ऑयल पर 125 ml एक्स्ट्रा। हेडलाइंस के लिए ताउन किया है सॉफ्ट स्किन, नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर।
सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील 𝐼𝐧𝐬𝐢 के दलाइल जारी। अडियाला जेल में जज अबू अल हसनात जुल्करनैन की सरबराही में साइफर केस की समाअत। शाह महमूद कुरैशी की बेटी और बेटा ज़ैन कुरैशी भी अडियाला जेल पहुंच गए। इसराइल हमास जंग के असरात। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 4.7% इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $86.65 फी बैरल तक पहुंच गई। WTI की फी बैरल कीमत $88.39 हो गई। इसराइल फलस्तीन कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का बंद कमरा हंगामी इजलास बेनतीजा खत्म। बाज़ाब्ता करारदाद पेश की गई और ना ही मुश्तरका एलामिया या बयान जारी हो सका। अमेरिका की जानिब से रुकन ममालिक पर इसराइल पर हमास के हमलों की मजम्मत करने पर जोर। इसराइल पर हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 700 से तजावुज कर गई। 2200 से जायद जख्मी। हमास के तूफान अक्सा ऑपरेशन में मरने वालों में सीनियर फौजी अफसर समेत 50 फौजी एहलकार भी शामिल। 100 से जायद इसराइलियों को हमास ने यरगमाल बना लिया। इसराइल ने गजा में बर्बरियत मचा दी। फिजाई हमलों में फलस्तीनी शहदा की तादाद 413 तक पहुंच गई। 78 बच्चे और 41 खवातीन भी शामिल। जख्मियों की तादाद 2000 से जायद हो गई। अमेरिका ने हमास के खिलाफ जंग में इसराइल की मदद के लिए अपना जंगी बहरी बेड़ा रवाना कर दिया। बहरी बेड़े में तैयारा बरदार जहाज समेत 5 तबाहकुन बहरी जहाज शामिल। अमेरिकी सदर जो बाइडन का इसराइली वजीर आजम से मुसलसल टेलीफोनिक राबता। कराची के इलाके गुलशन इकबाल मस्कन चौरंगी के करीब फास्ट फूड की दुकान में गैस सिलेंडर धमाका। मोटरसाइकिल सवार और रिक्शा ड्राइवर जख्मी हो गया। दुकान तबाह हो गई। अफगानिस्तान के सूबे हरात में जलजले से मरने वालों की तादाद 2400 से तजावुज कर गई। 9000 अफराद जख्मी हो गए। अफगान हुकाम को जलजले से अमवात की तादाद में इजाफे के खदशात। 1500 से जायद मकानात तबाह हो गए। और वर्ल्ड कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से हराकर अपना पहला मैच जीत लिया। आज न्यूजीलैंड और नेदरलैंड्स मद्दे मुकाबिल होंगे। अस्सलाम वालेकुम। डॉन न्यूज के साथ मैं हूं अली अब्बास। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, यहां आपको अपडेट करेंगे। कराची के इलाके मस्कन चौरंगी के सिलेंडर धमाका केस में अहम इंकिशाफ सामने आ गया। इलाका मकीनों ने मेयर कराची को बड़े हादसे के खदशे से आगाह कर दिया था। अहले मोहल्ला ने नुकसानात का जिम्मेदार शहरी इंतजामिया को ठहरा दिया। इस पर मजीद बात करते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, बताइएगा मजीद क्या चीजें सामने आई हैं? जी बिल्कुल, देखिए मस्कन चौरंगी के करीब फास्ट फूड की दुकान में सिलेंडर धमाके के बाद ये इंकशाफ हुआ है कि इस तमाम सूरत हाल से पहले मेयर कराची को जो खतरात थे उसके पेश नजर जो है बताया गया था, जबकि अल्लाह अपार्टमेंट के मकीनों ने जुलाई 2023 को खत लिखा था। मेयर कराची को गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने के खिलाफ दरखास्त दी गई थी, जबकि एप्लीकेशन में ये भी बताया गया है कि खत में तजावुजात से मुतालिक भी तमाम सूरत हाल से आगाह किया गया था। इलाका मकीन से हमारी बात हुई है, उनकी जानिब से कहा गया है कि मेयर कराची समेत हर फोरम पर शिकायत की गई, किसी ने हमारी नहीं सुनी और आज 2-2.5 करोड़ की गाड़ियों को नुकसान हुआ है। इस तमाम धमाके के बाद जो आखिरी दीवार थी इस दुकान की, उस साइड से जो है वो ज्यादा नुकसान हुआ है। दीवार टूटने से जो वहाँ मौजूद गाड़ियां खड़ी हुई थी, तकरीबन 7 से 8 गाड़ियों को जिसके तौर पर नुकसान हुआ है। इस तमाम सूरत हाल के बाद पुलिस और रेंजर्स मकाम पर मौजूद है। बम डिस्पोजल स्क्वाड भी यहाँ पर तलब किया गया था, जिसकी जानिब से तमाम शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो क्राइम सीन यूनिट है वो भी तमाम शवाहिद इकट्ठे कर रहा है। पुलिस हुकाम की जानिब से इब्तदाई तौर पर ये कहा गया है कि ये गैस लीकेज या सिलेंडर धमाका हो सकता है, लेकिन जो इलाका मकीन है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि इस धमाके से कबल जो है वो गैस की जो बू आ रही थी, इस तमाम बाकी के हवाले से इतला भी दी गई थी, लेकिन उसी के चंद सेकंड बाद ये एक जोरदार धमाका हुआ। उसके बाद दूसरा धमाका हुआ, तो 2 ये धमाके हुए हैं। 2 धमाकों के बाद 2 अफराद जख्मी अस्पताल लाए गए थे। अब तक पुलिस की जानिब से तमाम शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी है।
जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि कराची के इलाके गुलशन इकबाल मस्कन चौरंगी के करीब सिलेंडर धमाका केस में अहम इंकशाफ सामने आ गया है। इलाका मकीनों ने मेयर कराची को बड़े हादसे के खदशे से आगाह कर दिया था। अहले मोहल्ला ने नुकसानात का जिम्मेदार शहरी इंतजामिया को ठहरा दिया है। मुल्क में डॉलर की बेकदरी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.19 सस्ता होकर 281 रुपये 50 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आगाज में मंदी का रुझान है। तफसीलात जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे तलकीन सुबैरी से। जी तलकीन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज हफ्तेवार कारोबार का पहला रोज है और हम देख रहे हैं कि आज भी डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा हो रहा है और जो है रुपए की कदर में जो है इजाफा देखा गया है ₹1.19 का। जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में जो पिछले हफ्ते उसने अच्छा परफॉर्म किया था, आज थोड़ी सी जो है टेक्निकल करेक्शन नजर आ रही है। तकरीबन जो है 47,200 के लेवल पर स्टॉक मार्केट ट्रेड कर रही है। और डॉलर के हवाले से जो करेंसी डीलर्स हैं उनका ये कहना है कि जिस तरह डॉलर आ रहा है, इन्होंने पिछले 1.5 माह में $2 अरब इंटरबैंक मार्केट में जमा कराए हैं, तो इससे ये लगता है कि सप्लाई साइड बहुत बेहतर है और आने वाले दिनों में डॉलर की कीमत मजीद गिरेगी। बहुत शुक्रिया तलकीन सुबैरी। रेंजर्स ने कराची में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। पुराना गोलीमार, बंधानी कॉलोनी, लियाकताबाद से 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान से असलहा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन से बरामद कर लिए गए हैं। गिरफ्तार अफराद ने मुख्तलिफ इलाकों में 250 से जायद वारदातों का एतराफ़ कर लिया है। रेंजर्स ने कराची में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। पुराना गोलीमार, बंधानी कॉलोनी, लियाकताबाद से 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान से असलहा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए गए। खबरें आपने मुलाहिजा की। डॉन न्यूज़ से इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट DawnNews.tv और DawnNews TV मोबाइल ऐप। एक बार फिर आप देख सकेंगे प्रोग्राम में चाय टोस्ट और होस्ट। देखते रहिए डॉन न्यूज़। वेलकम बैक वंस अगेन। जैसे हम बात करें कि हाउ टू बूस्ट आवर ब्रेन फोकस, हमारी मेमोरी, इन सब का जो होता है ना कनेक्शन होता है, वो खाने पीने से भी होता है, आपके लाइफस्टाइल से भी होता है। आप किस तरह अपना फोकस लेके आएँ, अपना कंसंट्रेशन लेके आएँ, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे पहले भी और अभी दोबारा करेंगे। और हमारा जो अगला सेगमेंट है वो है फ़र्क पड़ता है। और जी आज हमारे साथ जो यहाँ पे गेस्ट मौजूद हैं, दे आर वेरी फेमस, बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है उनकी, बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ा अच्छा समझाते हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं और लोग उनकी बात सुन के अमल भी करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, सबसे पहले मैं आपको मिलवा दूँ डॉक्टर मोइज़ हुसैन, पायनियर ऑफ योगा एंड माइंड साइंसेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप डॉक्टर? अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके साथ यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत से शोज़ किए हैं। डॉक्टर मोइज़ के साथ पहली दफ़ा मैं शो कर रही हूँ। डॉक्टर ईसा के साथ जो है काफ़ी शोज़ किए हैं, हर्बलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर मोइज़ आपके साथ मैं पहली दफ़ा शो कर रही हूँ। अच्छा, हो सकता है। बिल्कुल पहली दफ़ा। मैं तो आज ये देख के हैरान हो गया। पहले हाँ। आपका स्टूडियो कहीं और होता था, तो हमेशा आते हुए सोचता था कि इतने कंटेनर्स वहाँ चलते हैं जी, कभी कोई ब्लॉक हो जाए, गिर गए और ब्लॉक हो गया तो मसला। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन कंटेनर के साथ गाड़ी ले हो चुका है। मेरी एक मैनेजर थी, सऊदी एयरलाइन में पहले एरोस्टेस थी। अच्छा। फिर कोई शादी हुई उसकी, यूके में तलाक हो गई, पाकिस्तान आई, बहुत अपसेट थी, हाँ। डिप्रेशन में थी बहुत। तो हमारे वर्कशॉप में ही किसी लड़के के साथ उसको प्यार हो गया जो कि ऑलरेडी मैरिड था। हाँ। और उससे दूसरी शादी इस लड़की के साथ की जो मेरे पास मैनेजर थी। अच्छा, अच्छी खासी शादी गुजर रही, सब कुछ है। और वो एक दिन अपनी फैक्ट्री जा रहा था। हाँ। और साथ एक कंटेनर था, वो कंटेनर गिरा है उसकी गाड़ी पे। अच्छा, स्मैश, बिल्कुल स्मैश कंप्लीटली। और बड़ा अफसोस हुआ कि बेचारी ऑलरेडी दुखी थी, हस्बैंड ने उसको तंग किया, जो पहली शादी उसकी नाकाम हुई, अपना जॉब छोड़ा। और कंटेनर्स का बड़ा एक है वाकई कि आप जब कंटेनर्स के पास से गुजर रहे होते हैं तो बड़ी टेंशन होती है। वो एक तो बात एक अलग है कि जिंदगी मौत तो कहीं पे भी तो कहीं पे भी आ सकती है। अल्लाह ताला ऐसी मौत से बचाए। बिल्कुल बिल्कुल। असल में होता ये है कि जो जिम्मेदारी होती है चलाने वाले की, वो यहाँ के ड्राइवरों में नहीं है। नहीं है। कि अक्सर नशा
करके हाँ, गाड़ी सही कह रहे हैं, चलाते बिल्कुल। और इतनी रफ चलाते जी, जिसकी कोई इंतजार नहीं, तो बिल्कुल। कंटेनर गिरने का खतरा होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जी अपने माइंड को आप फोकस कैसे करें, कंसंट्रेशन कैसे करें। अच्छा, सबसे पहले तो ईसा भाई, यहाँ पे आप जो ये चीज़ें आपने रखी हैं, सलाद का पत्ता, डार्क चॉकलेट और उसके साथ 2-3 चीज़ें और है, ये ज़रा लाइफस्टाइल जो है आपका। इसीलिए मैं ये चाह रहा था कि आज लोगों को, क्योंकि देखें ब्रेन हमारे जिस्म का एक पावर स्टेशन है, बिल्कुल, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। यानी कि इंसान ने इंसान को चांद पर पहुंचा दिया इस ब्रेन की वजह से, बिल्कुल, मगर अपने ही ब्रेन से वो लाइल्म है। तो हम चाहते हैं कि उसे बताएं तो सही। यानी कि आप देखें उसका शेप जो है वो अखरोट की तरह है जी, टोटल उसका वजन 2 स्लाइस ब्रेड के से ज्यादा नहीं है, ठीक। और उसके अंदर अगर आप न्यूरॉन्स देखें 86 अरब के करीब न्यूरॉन्स हैं, अच्छा, जितने तकरीबन आसमान पे सितारे हैं। तो कुदरत की क्रिएशन पर अगर आप देखें कि अल्लाह ताला ने एक ऐसी नेमत उसे अता की है, लेकिन वो ये जानता ही नहीं है कि मैं क्या खा रहा हूँ जिससे मुझे नुकसान हो रहा है। तो मैं आज खतरनाक 4 चीजें बताने वाला हूँ जो बहुत ज्यादा नुकसान करती अच्छा, है, और 4 वो चीजें बताने वाला हूँ जो सुपर फूड है। ठीक है। तो बेसिकली ये चीजें सब लाने का मकसद ये था कि लोगों के पास होते हुए भी शायद इंफॉर्मेशन नहीं हो, और वो चीजें जो लोगों को ये पता ही नहीं है कि दिमाग, जैसे आजकल कुछ तो देखें बीमारियां हैं ना, बहुत सारे थायराइड्स वाले हैं, डिमेंशिया है, इस तरह की कुछ बीमारीज में, तो वो प्रॉब्लम तो अलग जगह पे। नॉर्मल लोग जिन्हें कोई डिजीज नहीं है उनकी भी याददाश्त कमजोर है, बिल्कुल ठीक, चीजें भूल जाते हैं। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूं, मेमोरी फिश, बिल्कुल गोल्ड फिश मेमोरी हो जाती है आपकी। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ऐसी क्या चीजें हैं जो हम कर रहे हैं। मैं आपको मजे की बात बता रहा हूँ, मोहित साहब गाड़ी चलाते हैं, इनकी गाड़ी में पेट्रोल डलता है ऐसे ही, बहुत महंगा, लेकिन आज क्योंकि हमारी पुरानी जान पहचान है, तो मैंने बता दिया गाड़ी कौन सी है, नाम नहीं ले रहा। तो खैर मैं गारंटी से ये कहने वाला हूँ कि मोहित साहब को मैं कहता हूँ मैं आपको डेली 5,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, आप उस गाड़ी के अंदर जरा डीजल डाल दें, ये उठा के 5,000 मेरे मुंह पे मारेंगे, अरे डॉक्टर साहब मेरी लाखों रुपए की गाड़ी खराब हो जाएगी। यहाँ आपको सोचना पड़ेगा कि अल्लाह ताला की सबसे ज्यादा पेचीदा मशीन है, इसमें हर चीज कैसे डाल दोगे। सही बात है। जब तुम एक बनाई हुई मशीन में सारी जिंदगी ये गलती करने के लिए तैयार नहीं हो, तो ये जहन में रखिएगा कि अल्लाह ताला ने मुझे झूठ के लिए बनाया ही नहीं है। मैं जब बोलूंगा मेरा ब्रेन उससे इम्पैक्ट डालेगा, नेगेटिव डालेगा। हाँ जी, आपकी मेमोरी खराब होगी। ठीक है। दूसरी चीज फ्राइड आइटम, अच्छा, बड़े मदे मदे दिखा रहे होते हैं लोग। थर्ड शुगर किल करती है, यानी कि आप किसी भी फॉर्म में ले लें, ठीक है, वो ब्लैक फॉर्म में ले लें, व्हाइट फॉर्म में ले लें, शुगर से बनी तमाम चीजों से हमें परहेज करना चाहिए। थर्ड, रात का वक्त पर नहीं सोना। ओह, ये भी एक बहुत बड़ा, रात की नींद बड़ी इंपॉर्टेंट है। ईसा भाई हमारे साथ एक कॉल है, वो ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना जाफरी साहब, आमना मलिक, आपने तो आज आमना जाफरी, आप हमेशा मुझे आमना जाफरी कहते हैं, आपकी फेवरेट थी वो, मुझे याद है। मुझे बिल्कुल याद है, क्योंकि मैंने टीवी शो के कॉल का आगाज वो TV 1 पे शो करती थी और मैं उसके बाद आई थी, तो आपने मुझे आमना जाफरी तब भी बहुत दफा बोला है। इनफैक्ट मुझे भी बड़ी पसंद है। नहीं, यू आर माई फेवरेट वन, और बहुत आप जेन्युइन प्रोग्राम करती है। जो आप हैं वो वही हैं, आप कभी पोज नहीं करती, अच्छी बात है। थैंक यू। याया क्या पूछेंगे? पहले तो हमारे फेवरेट दोनों बैठे हुए हैं, दोनों से मेरी मुलाकातें हो चुकी है, और भाई जब डॉक्टर मुईज आते हैं तो मेरा दिन बन जाता है, यकीन कर। तो भाई बात ये कि मैं यही बात जो ईसा भाई कर रहे थे ना, कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए आजकल के दौर में हमने अपना लाइफ रूटीन ऐसा कर लिया है कि हम हर वक्त मोबाइल पे लगे रहते हैं, देर में सोते हैं, देर से उठते हैं, जबकि मैं तो खैर अर्ली उठता हूँ, और हम अपने माइंड को इतना थका देते हैं फजूल चीजों के अंदर। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि हम अगर जैसे हम उठते ही व्हाट्सएप देखते हैं, हर वक्त हमारा जो एंगेजमेंट है ना गैजेट के साथ होता है, या हमारे बच्चों का भी हम उन्हें क्या समझाएंगे जब खुद इन्वॉल्व होते हैं। और हम जो मसाइल अपने जो कहते हैं ना, आपने एक बात एक दफा कही थी कि आप अपने ब्रेन को जो है ना, यानी इतना ज्यादा